Hi, let's start. Hi, I'm Janvi Shinde. Right now I'm studying second, third MBBS at HBT Medical College in Dr. R.N. Cooper Municipal General Hospital in Mumbai. I cracked NEET in 2017 and I'm an IIBN. आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना? A very typical question first to say. Basically, I'm from family of doctors. My mother, father and uncle, everyone is a doctor. So while growing up, I've seen them. It was a thing that in 8th standard, you may not believe it, but I used to go into the OTs with them. I used to attend patients with them. But when we are in government hospitals, what we see is the real suffering. And what is the cause behind their suffering? So what we see there is something different from what we see in private setups, right? And that is more appealing for us to do something better. Now I know that it's not just the comforting thing. What a doctor does is far more greater than that. IIB में नीट की तैयारी और अब MBBS की पढ़ाई, इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आता है? When we were studying at IIB, we knew that this is one book. You have to read from the first page to the last page and nothing else. Now, for a subject, we have 3 books. And to make one answer, we need to combine all those 3. कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, तो इसको ये एग्जाम में नहीं आने वाला. So don't give time to this. ये बोलने वाला कोई नहीं होता. So वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि बचपन से तो हमारी स्पून फीडिंग हुई है कि यार ये पढ़ लो ये आ जाएगा. बट अभी ऐसा कुछ नहीं है. So pre-NEET Janvi was a girl who used to sit in a room and study the whole time. She used to just get up for the breaks of say eat food and stuff when mom used to call. But now she is a different person, right? She has to attend lectures, she has to attend wards, she has to even think which exam is to be given, which is not, which wards are to be attended right now, where your focus is needed. It's not like we had a choice, we had to be or we had to stand out there. IIB में 11th और 12th की पढ़ाई के दौरान और अब MBBS की पढ़ाई करते हुए वो कौन से दिन थे जो सबसे ज्यादा मुश्किल थे? हमारी जब लास्ट जंबो सीरीज स्टार्ट हुई फॉर द होल सिलेबस फॉर बायो, सो सर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सम टफ पेपर्स. सो माय मार्क्स स्टार्टेड डिटोरिएटिंग. आई नेवर स्कोर्ड लेस देन 340 इन अ जंबो, बट like 2 jumbos I was 300, I was 270, and then on the third I was like 200. That day I came home and I started crying like anything. I did not stop, but I think that day was when my confidence was completely shattered. So I think that had to be there for me to do better. Post-NEET toughest day is every Viva day. Whenever we have an examination practical, we have Vivas, we have teachers asking anything from the book and we're so scared. So those are the toughest days. Like literally there's not one day which is not tough when you got a Viva. And especially in universities when we have externals and stuff. So tough days are gonna be there. But there's one thing that I did always, that my teachers told me to do, and that is to believe in yourself. They said that never say you can't do anything. Just say हो जाएगा, मैं कर लूँगी. आपके जूनियर्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? In fact, this is something I experienced. Suppose आपकी आज जंबो है, and suppose you had to prepare say 10 chapters. But in case तुम bad place में हो, say तुम्हारे 5 chapters हुए हैं, 5 नहीं हुए. But वो 5 चैप्टर्स ऐसे नहीं होते कि तुमने कभी नहीं पढ़े, कभी तो पढ़े, तो वो होता है तुम्हारी मेमोरी स्टोर में. तो अगर तुम स्ट्रेस आउट होगे तो वो भी ब्लैंक हो जाता है. तो दैट अगेन लीड्स टू डिक्रीमेंट इन द मार्क्स. सो आई फील कि यू शुड नॉट स्ट्रेस आउट और से पैनिक जब तुम एग्जाम लिख रहे हो, क्योंकि इस केस में सबसे ज्यादा मार्क्स जाते हैं. IIB में आपका सबसे मजेदार दिन या पल कौन सा था? सो आई रिमेंबर वन इंसिडेंट. तो कुशवा सर यूज्ड टू टीच जेनेटिक्स टू अस एंड वो यूपी से थे. सर की एक अजीब एक्सेंट थी. ही हैड अ एक्सेंट द टिपिकल यूपी वाला. सो देयर वर सम वर्ड्स लाइक हम क्योंकि बोलते हैं तो सर इज लाइक जो कि ये ऐसा है ऐसा. एंड सर आप में बात करते थे, आप, तुम, हम. सो सर यूज्ड टू बी लाइक हमने तुमको बोला था ये करने के लिए, ये नहीं हो तुम. तो ये समथिंग वी यूज्ड टू लाइक कि यार ये नया है कुछ, तो यार मज़ा आ रहा है ये सुन के. तो मेरी आदत थी जब सर पढ़ा रहे तो मैं बस प्रिटेंड करती थी कि मैं सर के वर्ड्स अभी सर क्या बोलेंगे, तो उस टाइप में मैं थोड़ा मिमिक करती थी अपने मन में.
So one fine day he was teaching genetics, I guess, and I was doing the same thing again. So he looked at me suddenly. I don't know what happened. Maybe his phone vibrated or something. He looked, तिरछी नजर से एक बार मेरी तरफ देखा तो मैं डर गई. I was like यार इनको शायद पता तो नहीं चल गया कि मैं क्या कर रही हूँ. बट सर को कॉल आई थी, तो सर ने कॉल उठाया, देखा किसकी कॉल है. आई गेस ट्री कॉलर पे उनको आ रहा था पाकिस्तान से. तो ही वाज लाइक ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान से कॉल आ रही है हमको. तो सब लोग हंसने लग गए और मैं अभी भी उसी स्टांस में थी कि यार भाई चल क्या रहा है, हुआ क्या है. मैंने देखा सब लोग हंस रहे तो आई वाज लाइक यार सब हंस रहे, हम भी हंसते चलो. तो मैंने भी हंसना शुरू कर दिया. तब मुझे कुछ नहीं समझा क्या हुआ क्या नहीं, बट अभी याद आता है तो मस्त था. अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप कौन सा लेक्चर फिर से अटेंड करना चाहेंगे? देशमुख सर के क्लासेस, because उनके topics were the topics I was most interested in, and so I used to read everything. मैं कुछ नहीं छोड़ती और मैं जानबूझ के सर के सामने जब सर पूछते तो कॉन्फिडेंटली सर के आंखों में आके डाल के कि सर मुझे पूछिए प्लीज़, मुझे बताना है इसका आंसर. तो ये होता था. तो I would like to go back there. क्या आपका कोई प्लान बी था? अगर डॉक्टर नहीं तो फिर क्या बनना चाहते आप? So when I was in 10th, तब मेरी क्लास टीचर ने बोला था कि there is an aptitude test you should take, जिससे वो बताते हैं तुमको कि where you should go. बट मेरे घर पे ऐसा था कि मेरा क्लियर था एंड पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी मच इन दैट डायरेक्शन कि नहीं ये करना है तो ठीक है ये करना है. तो फिर मैंने वो किया, बट मैंने सोच रखा था कि अगर ये नहीं होता है तो अगले दिन आफ्टर आई गेट द मतलब मुझे पता चलता है कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं, आई हैड डिसाइडेड कि मैं अगले दिन वो टेस्ट लेने वाली हूँ और उसके हिसाब से जो होगा वो कर लूँगी. So that was my plan B. I didn't take the test because I had a nice score, right? So I was confident कि लगना तो है तो छोड़ो क्या करना है. क्या ज्यादा चैलेंजिंग है, नीट या आगे की लाइफ और करियर? Obviously the later life, because honestly तुम नीट देखते हो तो it's just an exam. तुम्हें एक कमरे में बुक्स पढ़ने, ट्यूशन्स अटेंड करने और एग्जाम्स देने हैं बस. And this cycle continues. तुम जब MBBS में जाओगे there'll be 10 things in front of you. फाउंडेशन, अब तो फाउंडेशन कोर्स है तुम्हारा. आफ्टर फाउंडेशन कोर्स यू हैव योर लेक्चर्स, यू हैव प्रैक्टिकल्स, यू हैव वार्ड्स, क्लिनिक्स, पोस्ट एंड्स एंड टू मेनी थिंग्स टू हैंडल एट वंस. तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैव डन बिफोर. तो मुश्किल होता है, एक साथ तुम कोप अप नहीं कर पाओगे. तो डेली धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा. तो बाद में की लाइफ ऑब्वियसली इज मोर डिफिकल्ट बट इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल. You'll learn. अगर आपका बस चले तो नीट के सिलेबस से आप कौन सा चैप्टर हटाना चाहेंगे और क्यों? I used to love bio. बायो में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं बोलूँ ये यार ये पसंद नहीं आ रहा है. एंड अगर पसंद भी नहीं आता तो टीचर्स उतना इंटरेस्टिंग बना देते कि ठीक है यार इंटरेस्ट आने लग जाता कि ठीक है यार पढ़ा जा सकता है, चलो पढ़ लेंगे. IIB आइकन्स कहे जाने पर आपको कैसा लगता है? Being called as an IIB icon, it's a great honor for me. I'm flattered because ये कुछ expected नहीं था. It's kind of mixed for me. एक तरफ से honor भी है and I feel nice that I get to help somebody gets help from what I'm experiencing. And I feel that हर वो बच्चा जो IIB में पढ़ के आज गवर्नमेंट कॉलेज में है, who has his journey done through IIB, is an IIB icon. So yeah, it's a great feeling. एजुकेशन के अलावा आपको IIB से क्या मिला? Apart from education, what I got from IIB is the quality to believe in myself and to say myself that I can do it. Because my journey throughout wasn't like I was getting consistently good marks, like हाँ इसके तो मार्क्स अच्छे ही है ये तो टॉप करेगी, ऐसा नहीं था. I was like बहुत ups and downs थे, एक में अच्छे मिलते हैं तो दूसरे में कम मिल रहे हैं. तो throughout, बट एक चीज़ कांस्टेंट रही, वो थी दैट माई टीचर्स बिलीव्ड इन मी. दे सेड कि नहीं तू अच्छी है, तुझसे होगा. तो वो बिलीफ ऐसा था कि मैं भी सोचती थी कि यार ये लोग इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं क्यों डर रही हूँ. दिस इज अ लाइफ लेसन राइट which I got from IIB other than just notes or teaching. Honestly, there's no secret or there's no you need to be a special candidate or you need to have some special qualities that you memorize faster and you're getting concepts very quickly. There's nothing like that. Because honestly, telling about me, I was a failure in school. So I used to fail my maths. So I never thought that I could do this, right? All it took was consistent hard work and belief in myself.